Are you looking to have a career in business tax, but don't know what is exactly we do and questions that we ask? Don't worry, we have CA Manish with us. He will help you with all your doubts. Watch till the end to get complete knowledge. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we have Manish with us. So Manish had qualified his CA in 2018 with All India rank 14. Right now he's working in EY in the corporate tax division. So let's hear more about Manish from him. Yeah, thanks, Dhansha, for giving me this opportunity. Hi, everyone. Myself, Manish Agarwal. I qualified my CA in May 2018 with All India rank 40. Presently, I'm working, as Dhansha said, I'm working with EY Calcutta as corporate tax consultant. I have been at EY for almost 5 years. I will be completing 5 years in November 2023. If I talk about my professional, apart from my work that I do at EY, so I have been associated with ICI Jamshedpur. Jamshedpur is my hometown. I have been associated with ICI Jamshedpur as a member of OT and MCS faculty since December 2019. Thereafter, I have currently working with a lot of ICF Jamshedpur, a lot of events, and that the ICI Jamshedpur organizes. Apart from that, I have also got an opportunity to come and have a speech on your international taxation at Xavier Institute of Social Science, Ranchi. So if I have to talk about what is Xavier Institute of Social Science, it is your MBA colleges which comes under tier 2 MBA colleges, which is, you can say it in top 20 colleges in India. So I had that opportunity, and luckily in couple of months back, I had also got an opportunity to feature on Joe Stock on how I qualify my CA, being a failure in my school to being a ranker in my finals. So as this session goes on, I will let you know about my journey to being a chartered accountant. Yes, Dhanshu. Yeah, thanks Manish. Thank you for the introduction. So Manish, we always hear कि corporate tax, which basically means कि business का किसी का tax हम लोग निकालते होंगे, correct? Right. So अगर मैं दूसरे big fours में जाऊँ तो is it that they call it with different names in different big fours? So ideally, if you talk about technicality, direct tax is divided into 3 to 4 parts in Big Four. One is your individual taxation, that is called as personal advisory services. So technically, all the Big Fours call it PAS, which is personal advisory services. Then you have transfer pricing. Then you have BTS or business tax services. So I am a part of business tax services. Then you have international taxation. So all they are 3 to 4 domains under direct taxation, and all have different scopes. For example, if I talk about individual taxation or PAS, they work only for the individuals. So all the you can say HNIs on all the celebrities, persons. So the Big Four, the individual taxation group of the Big Four, they target all the individuals, higher individual HNIs having a lot of income. They provide services to them. If I talk about transfer pricing, so they do pure transfer pricing. If I talk about international taxation, they do all international tax, all your DTAAs and your OECD models and your UN models. If I talk about BTS, the domain in which I am working, we work for corporate taxation, which involves we provide or we work for income tax for corporates, so that is companies. So in corporate tax, we work for litigation, advisory, and your compliances. And technically, the same term is used in all the Big Four, that is Deloitte, EY, KPMG, and PwC. So corporate tax or business tax, जब भी हम लोग बोलेंगे, it is one or the same thing कि Yeah, it is the same thing. Okay. So Manish, when we talk about this corporate tax or business tax, what exactly do we do in this? मतलब कि क्या उसका रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग, या फिर उसका कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वो इंटर करने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग एडवाइजरी देते हैं? What exactly do we do? ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स में क्या है ना, कॉर्पोरेट टैक्स में भी हम लोग 3 पार्ट करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स का भी काम को वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज योर कंप्लायंस. अगर मैं सिंपली लेमन टर्म में बोलूँ, कंप्लायंस जहाँ हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न. दूसरा हो गया लिटिगेशन. तीसरा हो गया एडवाइजरी. इफ आई गो तीनों में क्या होता है, इन कंप्लायंस हम लोग आईटीआर फाइल किए, करेक्ट. आपको कॉर्पोरेट का टाइमलाइन आएगा, सितंबर आएगा या नवंबर आएगा, अगर सब टीपी इश्यूज है.
ठीक है, तो हम लोग क्लाइंट का आईटीआर फाइल करेंगे, उसका कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसका फिर कंप्यूटेशन बनाने के बाद उसका आईटीआर फाइल होगा। फिर लिटिगेशन आता है। व्हाट इज लिटिगेशन? आप जब आईटीआर फाइल करते हो, अपना रिटर्न फाइल करते हो, उसके बाद वो रिटर्न स्क्रूटनाइज होता है बाय हम्म सीपीसी बैंगलोर, या फिर आपका जो एडिशनल एओ जो होता है वो आपका रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा। जब वो ऊपर रिटर्न चेक कर रहा है ना, तो हो सकता है डिपार्टमेंट को लगे, इनकम डिपार्टमेंट को लगे कि कुछ क्वेरी उसको हो, या फिर कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए रिगार्डिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है। आपने कुछ डिडक्शन दिखाया है, आपने कुछ खर्चा दिखाया है, तो इट कुड बी अ केस दैट डिपार्टमेंट नीड्स मोर क्लैरिटी ऑन दैट। So in that case, the department may ask you to give some clarification. They will issue a notice and they will ask हम्म for information. If हम्म you give the, and after that the SSC, the taxpayer, the company who has filed the ITR, they have to give the reply to the tax office. If the tax office is satisfied, उसको लगता है कि नहीं, आपने जो explanation दिया that is okay, that is good, हम्म and they are satisfied with the explanation, तब तो कुछ नहीं होगा, the proceedings get dropped. It is called as scrutiny proceedings. Proceeding ओके drop हो जाएगा। बट डिपार्टमेंट को लगा नहीं, आपने जो दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम लोग हम्म कुछ और मांग रहे हैं, आप कुछ और दे रहे हो। इन हम्म दैट केस कुड बी अ केस कि डिपार्टमेंट वो खर्चा आपको डिसअलाउ कर दे, या फिर कोई डिडक्शन आपने लिया वो डिसअलाउ कर दे। उस केस में ओके आपका कुछ इनकम टैक्स डिमांड आ जाएगा। आपने इनकम हम्म टैक्स रिटर्न फाइल की 100 रुपए का, 20 रुपए का खर्चा दिखाया, डिपार्टमेंट बोलता नहीं, तो खर्चा आपका अलाउ नहीं होना चाहिए, तो आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया। 100 रुपए से आपका इनकम हो गया 120 रुपया। अब हम्म 120 रुपये में कुछ टैक्स निकलेगा, उससे हल्का पर टैक्स लाइबिलिटी आ गया। फॉर एग्जाम्पल चलिए, हम्म आपको 10 रुपए का इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ गया, आप तो उसको हम्म पे करना पड़ेगा, राइट? आप हम्म तो पे करो, या फिर उसमें अपील में जाओ। यू कैन गो फॉर करेक्ट अपील, या फिर यू कैन वो पे कर 100 रुपये, 10 रुपये पे करो आप। 10 रुपये पे करो तो आपका लिटिगेशन खत्म हो गया। बट अगर आप हम्म 10 रुपये पे नहीं किया, आपको कहना नहीं जो डिपार्टमेंट ने किया वो गलत है, दैट इज बैड हम्म इन लॉ, दैट इज हम्म शुड बी क्वेश्चन, द ऑर्डर शुड बी क्वेश्चन। तो इन केस में आप सीआईटी में अपील फाइल कर सकते हैं, दैट इज कमिश्नर ऑफ अपील्स। या फिर रेक्टिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है 154 में, या रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं। तो फिर आप फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल, आप सीआईटी में गए अपील में, सीआईटी में आपने अपना सबमिशन फाइल किया कि नहीं, आपने कहा कि नहीं एओ का जो ऑर्डर था वो गलत है, दैट इज बैड इन लॉ। बैड इन हम्म लॉ इज अ टर्म, टेक्निकल टर्म विच वी यूज लीगली। तो आपने बोला नहीं, ये तो एओ का ऑर्डर गलत है, इट इज बैड इन लॉ, तो उसका ऑर्डर क्रैश होना चाहिए, एंड दिस इज माई रीजन कि उनका ऑर्डर क्यों क्रैश होना चाहिए। अब सीआईटी को लगेगा नहीं, वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज ओके और नॉट। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो ऑर्डर क्रैश हो गया, आपको डिमांड जीरो हो गया। सीआईटी सेइंग नहीं, डिपार्ट जो एओ ने कहा दैट इज करेक्ट, एंड आई एम नॉट हम्म सेटिस्फाइड विथ योर क्लैरिफिकेशन, देन एओ का ऑर्डर अपील हो जाएगा। अब अगेंस्ट द सीआईटी ऑर्डर आपके पास ऑप्शन होता है, आप आईटेट में जा सकते हो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। हम्म उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरा हम्म प्रोसेस को लिटिगेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या ओके करते हैं, हम लोग आईटीआर, क्लाइंट का आईटीआर फाइल हुआ, फिर स्क्रूटनी आया तो उसका स्क्रूटनी का काम किए, फिर उसका हम्म ऑर्डर आया, तो अगर फेवर में ऑर्डर आया तो ठीक है, अगर अगेंस्ट ऑर्डर आया तो उसका सीआईटी में अपील फाइल करते हैं, आईटेट में हम्म जाते हैं। तो ये सब को लिटिगेशन हम लोग बोलते हैं। ओके तीसरा ओके हो गया आपका एडवाइजरी। एडवाइजरी में हम्म क्या हुआ, आपका कोई क्लाइंट आया आपके पास फॉर सम क्वेश्चंस, फॉर सम एडवाइजरी, कि फॉर फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द बेर एग्जांपल। आपका सेक्शन 80 डबल जी डबल ए होता है, जो बोलता हम्म है कि आपने अगर एडिशनल एम्प्लॉय रखा है तो एडिशनल एम्प्लॉय का 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। हम्म उसमें सेक्शन में बोलता है आपको क्लेम लेने के लिए 80 डबल जी डबल ए के लिए एक फॉर्म होता है 10 DA, फॉर्म 10 DA, वो फाइल ओके करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर आईटीआर। और हम्म अगर आप फॉर्म 10 DA फाइल नहीं कर रहे हो तो आपको डिडक्शन 80 जी डबल ए का नहीं मिलेगा। ओके क्लाइंट आया, दे आर लाइक भाई मैं 5 साल से 80 डबल जी डबल ए का डिडक्शन ले रहा हूँ, पर मेरा सीए ने तो फॉर्म 10 DA फाइल ही नहीं किया। हम्म अब इस केस में क्या होगा, क्या मुझे 80 डबल जी डबल ए का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इट्स अ फेयर एग्जाम्पल। इसमें वी एडवाइज द क्लाइंट कि इसमें क्या होगा, व्हाट द सेक्शन ओके सेज, व्हाट द कोर्ट का कोई रूलिंग आया हुआ है, कि कोर्ट कुछ रूलिंग है तो उसमें रूलिंग में क्या है। फिर हम लोग कंक्लूजन दिखाते हैं कि बेसिस ऑल द टेक्निकल लॉ में जो लिखा हुआ है, आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है सबको लेके व्हाट इज आर ओपिनियन। So this ओके comes under advisory. So just to sum up, at corporate tax we do three things: compliance, advisory, and litigation. Compliance में आप आईटीआर फाइल किया, litigation में उसका स्क्रूटनी हुआ तो अपील्स में गए, advisory में we are advising on critical issues. So ओके basically this is the thing that we do in corporate tax. तो ये तीनों जो काम है तीनों के लिए अलग टीम है इंटरनली, फिर बाइफरकेशन है, या एक ही टीम है वो सब तीनों काम करती है? We have एक ही टीम है, वो सभी काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि विद इन बीटीएस और विद इन कॉर्पोरेट टैक्स और डिवीजन, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक एवरीवन डूज ऑल द वर्क। ओके ओके दैट मीन्स कि आ, आप जाते होगे कोर्ट में, मतलब कोर्ट में जाते हैं, मतलब
आप उसमें रिप्लाई देते होगे, फिर आता होगा स्क्रूटनी, तो फिर उसका रिप्लाई बैक करना, एवरीथिंग इज नॉर्मल डे टू डे रूटीन, जो करेक्ट। वेन एवर वन इंटर्स तो उसको ऐसा मिलेगा ही, है ना? राइट राइट। करेक्ट। ओके ओके। सो मनीष, लेट सपोज कि अगर कोई इस डिपार्टमेंट में आ जाता है ना, विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टैक्स, तो फर्स्ट थिंग कि इज इट पॉसिबल कि कोई सीए फ्रेशर आए हो जिसका कोई टैक्स में एक्सपोजर नहीं है, पर वो टैक्स में जाना चाहता है, तो कितना मतलब इजी होगा या डिफिकल्ट होगा किसी के लिए इसमें जाना? ओके, सो यू आई थिंक यू आर आस्किंग मोर फ्रॉम सीए फ्रेशर पर्सपेक्टिव, राइट? ठीक है। तो देखो क्या होता है कि एट बिग फोर, कोई भी बिग फोर का बात कर रहा हूँ, सो इस मैं बात करूँ आईपीसीसी का, लेट्स गो बैकवर्ड्स। आईपीसीसी, आपका आईपीसीसी क्लियर हुआ दोनों ग्रुप, आप आर्टिकलशिप के लिए आए, राइट? अगर 100 बच्चा आईपीसीसी क्लियर करते हैं ना, तो 2 बच्चा बिग फोर जाता है, 98 गोज टू अ मीडियोकर फर्म। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड और दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। वी कांट डिनाई कि खाली 100 में से 2 या 3 या 5 बच्चे होंगे जो बिग फोर जाएंगे, बाकी 95% गोज टू द मीडियोकर फर्म। ठीक है। So at mediocre firm you have different types of mediocre firm. There are some mediocre firm which do all the work. कोई mediocre firm ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक काम ही करते हैं। तो क्या होता है कि एट बिग फोर, एट अ सीए फ्रेशर लेवल, वी डोंट एक्सपेक्ट कि अ कैंडिडेट शुड हैव अ टेक्निकल और वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हम लोग ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, सिंस इनकम टैक्स इज योर सिलेबस इन योर आईपीसीसी, इन योर फाइनल्स, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपको बुकिश नॉलेज होना चाहिए। If I talk ओके about what do you mean by section 43B, what do you mean by section 32, what do you mean by section 28, what do you mean by section 22410, आपको पता होना चाहिए। If a candidate is coming and saying that मुझे वो भी नहीं पता, I don't know what is section 43B, I don't know what is section 22410, then in that case taking that candidate would be a difficult chance. But if a ओके। candidate is coming, उसका प्योर ऑडिट का, let's take the example, उसका प्योर ऑडिट का बैकग्राउंड है, 3 साल उसने खाली ऑडिट किया, ठीक है। बट आप यू विल अग्री कि इवन ऑडिट में आपका इनकम टैक्स कहीं ना कहीं आता है। आप ऑडिट कर, आप कारो बना रहे हो, आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट में पूरा अलग क्लॉजेस है जो आपका इनकम टैक्स से ही डील करता है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे, जब ऑडिट कर रहे हो तो बहुत से इश्यूज आता होगा कि कि आपका कोई पीएफ का लेट पेमेंट हुआ है, ईएसआई का लेट पेमेंट हुआ है, कुछ बोनसेस का पेमेंट कैश में हुआ है, कुछ भी, तो आप इनकम टैक्स डील करते हो, राइट? थोड़ा बहुत इनकम टैक्स आते ही आता है। प्लस आपका आईपीसीसी का सिलेबस में इनकम टैक्स है, फाइनल का सिलेबस में इनकम टैक्स है। तो ऑल दिस, ये चीज आपको अपना इंटरव्यू में बताना है। वी डू एट बिग फोर, वी नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीए फ्रेशर कि आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। वी नेवर एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट कि आपका नॉलेज होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, उसका क्या कौन सेक्शन क्या बोलता है, ताकि व्हेन यू आर कमिंग एट बिग फोर, जब आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको लैपटॉप मिलता है, आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। इट्स नॉट दैट यू आर फ्रेश। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मैं मेरा मीडियोकर फर्म, तो मैं सब काम करता था। मैं स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी, बैंक ऑडिट, इनकम टैक्स सब करता था। इनकम टैक्स में मेरी बेसिक कंप्लायंसेस में ज्यादा था और थोड़ा बहुत लिटिगेशन था, एडवाइजरी तो हार्डली था। तो मैं जब ईवाई में इंटरव्यू हुआ, सो दे आस्क प्योरली बुकिश की आपको व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेक्शन। और थोड़ा सिंस मेरा थोड़ा इनकम टैक्स में काम किया भी था, तो आई वाज एबल टू आंसर मोर, कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी था। इफ आई टॉक अबाउट लिटिगेशन, लिटिगेशन में बस मैंने ईओ का काम किया था, जो आपका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिटिगेशन का। मैंने अपील का भी काम नहीं किया, बट ओके। दैट वाज नॉट अ रीजन व्हाई ईवाई डिडंट टॉक टू मी। सिंस मेरा थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा था इनकम टैक्स का, एंड प्लस मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज था, आई वाज कंसिडर्ड अ गुड कैंडिडेट टू बी टेकन एट ईवाई। ओके। और जब मैं ईवाई में ज्वाइन किया एट ईवाई, आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी डे कि आपका एटी में अपील कैसे फाइल होता है, एटेन में अपील कैसे फाइल होता है, आई फाइल करने के बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हो, हाउ यू ड्राफ्ट द सबमिशन। ड्राफ्टिंग का सबमिशन बहुत बड़ा चीज है। आपको टेक्निकल लॉ का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको केस लॉ पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एट ईवाई वी आर डूइंग दैट एवरी डे, वी आर लर्निंग दैट एवरी डे। बट ओके ज्वाइनिंग ईवाई, आपका फाउंडेशन, जो टैक्स का फाउंडेशन होता है वो आपको होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर और एट अ बिग फोर रिक्वायर्स। ओके ओके। सो मनीष, आपने मीडियोकर में काम किया, नाउ यू आर वर्किंग इन द बिग फोर। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आइडेंटिफाई वर्किंग इन अ मीडियोकर फर्म? उसमें टैक्स कैसे काम करते थे, बिग फोर में ऐसे कर रहे हैं, कुछ मेजर डिफरेंस जो आप नोटिस करते हो? तो बिग फोर में क्या होता है एट मीडियोकर फर्म और बिग फोर, मीडियोकर फर्म में वी डोंट पे मच अटेंशन टू क्लाइंट इश्यूज। क्लाइंट आया, आईटीआर फाइल क्या हो गया। एट हम्म बिग फोर वी पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, इवन द माइन्यूट थिंग।
That is the you can say biggest difference between a big four and a mediocre firm. कि हम्म mediocre firm में क्लाइंट्स बहुत होते हैं, क्वांटिटी बहुत होती है, क्वालिटी कम होती है. बिग फोर्स में क्वालिटी बहुत होती है, हम्म दैट्स वाई क्वांटिटी हम लोग को कम होता है. हम लोग वी हैव बिग बिग क्लाइंट्स. आपका मीडियोकर फर्म में आपके पास 100 छोटे छोटे क्लाइंट्स है, बिग फोर में हम लोग पास 10 बड़े बड़े क्लाइंट्स है. क्वांटिटी हम्म. कम है पर आपका काम बहुत अच्छा है, काम बड़ा है, क्वालिटी बहुत बड़ा है. So that is the major difference between a mediocre firm and a big four in terms of direct tax. Okay, okay. So, Manish, let's suppose कोई जो है पर्सन he starts off his career in this tax domain. अब आपको तो 5 साल हो गया and you want to continue in this big four only, I believe, correct? हम्म. अब अगर मान लो कि someone wants to switch to industry afterwards, तो आई बिलीव कि ट्रांजिशन तो बहुत स्मूथ ही रहता होगा, है ना? अगर आप डायरेक्ट टैक्स से किसी कंपनी का ही डायरेक्ट टैक्स में जाना चाह रहे हो, तो वो तो काफी स्मूथ रहता होगा कंपेरेटिवली. See what happens, इसमें भी टू साइड्स है. ठीक है, बिग फोर का, बिग फोर वी आर कंसल्टिंग फर्म. कंसल्टिंग हम्म फर्म में क्या हुआ, हम लोग क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या क्या इंप्लीकेशन होगा. लेट्स टेक द एग्जांपल ईसॉप. हम्म ईसॉप का हम लोग बता देंगे आपको इनकम टैक्स में क्या टैक्सेबिलिटी है. हम्म करेक्ट. आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, हम लोग बता दिए. हम्म ठीक है. और अगर इफ आई टॉक अबाउट एंटिटी, वो क्लाइंट, वो कंपनी, कंपनी को इनकम टैक्स भी देखना है, कंपनी को लॉ भी देखना है, कंपनी को फेमा है तो फेमा भी देखना है, कंपनी को जीएसटी है तो जीएसटी भी देखना है. इवन आपको हम्म पता होगा इफ में देयर अ क्वेश्चन दैट 80% या 28% जीएसटी का बात हो रहा है. लेट्स टेक द okay, एग्जांपल. ठीक है. हम्म तो फॉर अ कंपनी, जो इंडस्ट्री है, दे हैव टू सी एवरीथिंग. बीइंग अ हम्म कंसल्टेंट आई जस्ट हैव टू सी डायरेक्ट टैक्स. ओके. सो व्हेन वी आर, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, वी जब कोई बिग फोर में होता है ना, एंड वे गो टू द इंडस्ट्री, तो आपका टेबल चेंज हो जाता है. वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. ठीक है. हम्म एंड बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, और could be a case कि that we are, when you are going to the industry, that particular profile that you are going for, it is tax, just tax. हम्म That includes direct tax, that includes indirect tax. So if you don't have the knowledge of IDT, it could be a challenging for you to crack the interview. But ओके. if the opening is only for direct tax, just direct tax, then it is golden era for you, because at big four, at any big four, you get plethora of learning, plethora of opportunity to learn. So हम्म you can say for qualifying any interview of direct tax in the industry is very simple, very easy, according to me. And if आप. recently, हम्म I have a friend at EY who is joining one of the industry. He was in Big Four at EY for almost 7 to 8 years, and now he is joining the industry. So ओके. you can say from Big Four to industry, it's very easy. But again, given the case, it's direct tax to direct tax. What हम्म what I have seen many times कि आपको इंडस्ट्री में टैक्सेशन का प्रोफाइल होता है, या फाइनेंस का प्रोफाइल होता है, या फिर ऐसा प्रोफाइल होता है वेर यू हैव टू सी ऑल द ट्रांजेक्शंस. इन हम्म दैट केस कुड बी अ चैलेंजिंग फॉर यू, बिकॉज उस केस में आपको सब पता होना चाहिए. ईसॉप्स में इनकम टैक्स में क्या होता है, जीएसटी में क्या होता है, फेमा में क्या होता है, उसका अकाउंटिंग क्या होता है, सब पता होना चाहिए. करेक्ट. हम्म. Okay, because in industry, majorly what I have seen कि FP&A या बिजनेस फाइनेंस इस टाइप के रोल्स ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली. जो टैक्स वाला सेगमेंट है, आई बिलीव अभी भी लोग जो है वो बिग फोर पे रिलाई करते हैं, जितना भी उनका कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस रहता है. एंड डे टू डे जो भी उसका काम रहता है उसमें दिन दे यूज देयर इंटरनल डिपार्टमेंट जो भी उनका इन हाउस वाला रहता है. करेक्ट. राइट. सो Manish, let's suppose someone is sitting, wants to, or has his interview tomorrow in this domain only, business tax or corporate tax. तो उसको क्या क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या फिर इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या क्या रहता है जो वो उनसे पूछ सकता है? ओके. तो जस्ट टू टेल ऑन दिस, तो आज ही मैंने 2-3 घंटा पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था फॉर इंटर्न who has cleared both groups of IPCC. So it was like for opportunity at articleship at EY. So what we at Big Four, what we expect from the candidate, आपका even take the example of being an intern, आपने IPCC क्लियर करके आपको EY ज्वाइन करना फॉर आर्टिकलशिप, और आपको फाइनल क्लियर किया एंड यू हैव टू ज्वाइन EY और एनी बिग फोर फॉर योर एज अ CA फ्रेशर. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आपने जो CV में लिखा है, रेज्यूमे में जो लिखा है आपने, वो आपका थरो होना चाहिए. इट शुडंट मीन दैट आप कुछ ब्लफ कर रहे हो. आपने कभी लिटिगेशन नहीं किया, पर आपने लिख दिया कि आई हैव वेंट फॉर CIT अपील, आई हैव वेंट फॉर IIT अपील्स.
ओके। आपने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है, आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि मैंने 100 आईटीआर फाइल किया इन द आईटीआर सीजन। जो सच है आप हम्म पहले वो लिखो अपने रिज्यूमे, एंड बेसिस दैट व्हाट यू हैव रिटन इन द रिज्यूमे द इंटरव्यू आस्क द क्वेश्चन, वी आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट हैपेंड, we from where we need to get the answer, we need to get the question, we get the question from the resume हम्म कि आपने रिज्यूमे में क्या लिखा है. सो if there is any CA fresher or a person who wants to join EY for articleship, resume should be thorough. Apart from that, whatever you have read at IPCC, whatever you have read in CA finance, in direct हम्म tax, that should be thorough. आपको theoretical knowledge होना चाहिए, even though आपको practical knowledge है for intern. If I talk about intern जो articleship में join करें, उनको तो obvious बात है कोई practical knowledge नहीं होगा. So we हम्म just check the theoretical knowledge. And same for CA fresher. अगर आपका आर्टिकलशिप में कोई एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली तो वो पूछा जाएगा, नहीं है तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. हम्म सो हम्म थ्योरेटिकल शुड बी एट पार, मतलब वो देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर theoretical knowledge. If I ask you what is section 32, आपको बोलना चाहिए section 32 deals with depreciation, उसका ये लॉज है. There shouldn't हम्म be a case that आप 32 को बोल आपको पता नहीं section 32 क्या होता है, या अगर कोई पूछे section 24 क्या होता है, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि section 24 क्या बोलता है. तो हम्म theoretical knowledge should, they should know, there is no compromise with your theoretical knowledge of your direct taxation. ओके। अब इसमें भी जो डीटी है आई बिलीव बहुत वास्ट है ना। अब इसमें भी लोग सब तो पढ़ के नहीं जा सकता है इंटरव्यू में। तो कौन सा मतलब कि जो मेजर है जो आप टच अपॉन करना चाहोगे कि यार ये सब तो पता ही होना चाहिए। जैसे आप अगेन एंड अगेन आप 32 या 24 का आप बात कर रहे हो, तो और भी कुछ होता होगा आई बिलीव जो कि मतलब है, जानना चाहिए ही चाहिए ऐसा टाइप का, और वो पूछता ही होगा तो। व्हाट रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल बजट, आपका बजट आया है, बजट में हम्म मेजर चेंजेस जो होते हैं वो तो पूछा ही पूछा जाता है. उसके हम्म अलावा बहुत सारे रिसेंट में क्या क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में, वो हम्म पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली सेक्शन 194Q TDS, सेक्शन 194Q, 194S, 194R, ये सब क्वेश्चन, ये सब बहुत हॉट टॉपिक्स था पहले, अराउंड हम्म 6 months या 7 months पहले. ओके। तो ये सब बहुत, whichever is hot topic, whichever is recent बजट में जो चेंजेस आए वो सब चीज अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका थोड़ा बहुत टीडीएस हो गया, लिटिगेशन हो गया, ये सब मेजर क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है. बेसिकली हम्म बजट, बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट और ओके का हॉट टॉपिक, उससे तो पूछा ही पूछा जाएगा. अच्छा ईसॉप ओके भी बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. ईसॉप, ईसॉप का टैक्सेबिलिटी क्या है, ईसॉप के बारे में बताइए. हम्म। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इफ मिलेगा तो कब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा. हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, मतलब मेजरली रिसेंट चेंजेस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके राइट टैक्स के इंटरव्यू में। राइट ओके राइट. ओके। एंड अगर हम ईवाई के नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस की बात की जाए तो आई थिंक इट वुड बी 2 स्टेप होगा, 2 टेक्निकल एक एचआर, या फिर 3 टेक्निकल या फिर एक एचआर, करेक्ट? नॉर्मली इट्स 3. आपका एक होगा मैनेजर राउंड, एक होगा डायरेक्टर राउंड, एक होगा पार्टनर राउंड, एंड देन यू हैव द एचआर राउंड. ओके ओके। एंड वो जो भी 3 होता होगा, 3 तो टेक्निकल ही जाता होगा पूरा कंप्लीटली, राइट 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 राइट, टेक्निकल और उसके बाद फिर एचआर. एचआर में तो फिर वो तो हो गया कंप्लीट। ओके, मीन्स नॉर्मल जो भी बिग फोर का होता है नॉर्मल वैसा ही राइट, इसमें भी सेम है। करेक्ट. ओके ओके। सो मनीष, लेट सपोज कि अगर मेरे को वो क्रैक करना ही है इंटरव्यू, तो क्या मैं कुछ ऐसा इंटरव्यूअर को जताऊं या बोलूं ड्यूरिंग द इंटरव्यू जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, सो दैट आई कैन आउटशाइन एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स? सी व्हाट हैपेंस कि हम जब भी हम कोई कैंडिडेट को ले रहे हैं ना, सो व्हाट इज द वन थिंग दैट वी सी इन द कैंडिडेट इज द हंगर टू लर्न. if I have, if I can see that attitude of the candidate, that he has hunger to learn, या फिर हम्म anyone, उसमें हंगर होना चाहिए लर्न करने के लिए, then that person is for sure getting into EY. Because I have seen cases where the candidate has not answered 9 out of 10 questions, but ओके still he was able to crack the interview just because he has that hunger to learn, hunger to learn something new. ओके। So, that hunger, if you have that hunger to learn something, that zeal in you, that you want to make a career in direct taxation, that hunger that you want to learn each and every, because what happens at direct tax कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया लॉज आता है, नया नोटिफिकेशन आ रहा है, नया सर्कुलर आ रहा है, नया जजमेंट्स आ रहे हैं हम्म अलग अलग कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, ट्राइब्यूनल्स के. तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ईच एंड एवरी डे. Okay. So, because of all these things, if a candidate has that hunger to learn, zeal to learn something new, he is most welcome.
Okay, that means अगर नहीं भी आ रहा है आंसर तो ही कैन टेल कि अभी नहीं आता है, आई विल ट्राई टू लर्न इट इन फ्यूचर, और फिर या फिर आप बता दो वैसा टाइप का कुछ अगर आप Yeah. आंसर करते। If he ओके doesn't know, he can simply say that sorry, sir, I'm not aware about this, but I will surely get back to you on this. ओके got it. Okay. So, Manish, I think you have covered most of the things related to this business tax, and हमने काफी सारी चीजें सीखी है at least, and I hope जो भी ये वीडियो देखेंगे he will be able to get the insights about this corporate tax, and maybe he will be able to make his career in this. So, thanks, Manish. Thanks, Sudhanshu. Thanks. Have a great day. Bye bye. Yeah, thanks. Thanks. Bye bye.